Hello, my wonderful, amazing, beautiful children. We are meeting after so many days, and we are like, I don't remember how many days it happened. After how many days we are meeting? I think it's 5 long days, right? After 5 long days, we are meeting again. So, welcome you all to the most interesting biology live session on the wonderful platform of Avanti. So, today we are going to learn about human excretory system. You all know, है ना? Last class Rohit was there. I don't see Rohit here. I think he has not joined yet. So he was there. He had given us so many videos link and we had watched it out, right? So today we are going to learn the theory part. है ना? We saw the video. So today we are going to learn the theory part properly. ठीक है? कि there can be different types of nitrogenous waste depending on water की availability उनका waste change होता है. अगर वो ज़्यादा पानी में है तो अमोनिया रिलीज करते हैं, कम में है तो यूरिया, और बिल्कुल नहीं उनको पानी वेस्ट करना तो यूरिक एसिड. ये हमने सीखा था, राइट? फिर हमने क्या सीखा था कि व्हाट इज एक्सक्रीशन. ये सीखा था कि इट इज प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, राइट? और कुछ सीखा था क्या? इजेशन और एक्सक्रीशन में डेफिनेशन क्या है वो सीखा था. एनीथिंग एल्स वी हैड लर्न? हाँ, यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है वो सीखा था. NH2CO NH2 NH2 होल ट्वाइस CO बोल सकते हैं. फिर सीखा था दो तरह के एनिमल्स होते हैं, ऑस्मो कन्फॉर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स. तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स आपके मोस्टली नॉन कॉर्डेट्स होते हैं एंड ऑस्मो रेगुलेटर आपके मोस्टली कौन होंगे? कॉर्डेटा होंगे. तो कॉर्डेटा में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं हमेशा. इन कॉर्डेटा देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक शार्क, हैगफिश. ये दोनों कॉर्डेटा ही है, राइट? हैगफिश एंड शार्क दे आर कॉर्डेट, बट क्या है वो लोग? दे आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स. मैंने आपको बोला था थोड़ा सा फाइंड आउट करना इनके बारे में, राइट? Hagfish and shark both are chordates, but they are not osmoregulator. They are osmoconformer. This was the exception, है ना? तो osmoregulator obviously जो developed वाले होंगे जैसे कि chordate, वो osmoregulator होते हैं, अपना osmotic balance को maintain रखते हैं. Types of kidney पढ़ा था. सबसे पुराना आपका आर्कीनेफ्रिक था, प्रोनेफ्रिक उसके बाद मीजोनेफ्रिक थोड़ा डेवलप्ड है. पाइसेस और एम्फीबियंस में आपको मीजोनेफ्रिक किडनी मिलता है, और मेटानेफ्रिक सबसे ज्यादा डेवलप्ड है जिसमें आपको मैल्पिगियन बॉडी, लूप ऑफ हेनली दोनों मिलेगा. मीजोनेफ्रिक में आपको सिर्फ बाउमेंस कैप्सूल मिलता है, आपको ये वाला पार्ट नहीं मिलता, लूप ऑफ हेनली वाला पार्ट नहीं मिलता. सो क्वेश्चंस आपका जनरली मीजो और मेटा से आता है, मीजो और मेटा से आता है. ओके, गॉट इट? सो या, तो इफ यू सी अ लोअर ऑर्गेनिज्म, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी सीरियस. ओके, तो इफ यू सी समथिंग यू नो like invertebrates and all, what comes to your mind? Do you think that they have very highly developed kidney? Do you think they have very highly developed kidney? Invertebrates? In case of invertebrates, no, right? They don't have that highly developed kidney. What they have? A tubular structure. They have simple tubular structure which will act as what? Which will act as a structure which will help in removing the nitrogenous waste. ठीक है? Co-host Aviral, I can see your messages. Co-host. Now, in case of vertebrate, in case of invertebrate, we know it will be simple tubular form. But in case of vertebrate, you will have complex tubular organ called as kidney. Is that right? In case of vertebrate, you will have kidney. Of course, we all have it, right? Now,
Let us discuss about, invertebrates, what they have. For example, platyhelminths, rotifer, some annelida, cephalochordata, example Amphioxus. These all I have taken from NCERT. Platyhelminths, rotifer. What are rotifers, Yes, very good, Aviral. It is a type of what? Annelida. Rotifer is a type of what I'm writing. It is a type of what? Aschelminths, right? Rotifers. Okay. Yes. Worm. It is a type of worm. Rotifer. Platyhelminth, rotifer, some annelida, cephalochordata. They have protonephridia. What do they have? Protonephridia or flame cells. So what do they do? What is the function of protonephridia? What's the function of protonephridia? Osmoregulation of ionic and what? Fluid volume regulation. Ion concentration they will maintain. How much ion is present in the body fluid and how much fluid is present. So basically what is the function of protonephridia? To regulate ion concentration and fluid concentration. Ions and fluid. All right. Coming to little more developed structure, nephridia. So where do you get nephridia, my dear? In annelida. In annelida you get what? Nephridia. In annelida you get nephridia, right? You know it, no? Nephridia, earthworm. You have learned earthworm in structural organization. Earthworm has nephridia. Remember there are 3 types of nephridia. Septal nephridia. Do you remember it? Integumentary nephridia. No? In earthworm it was there, right? There are 3 types of nephridia and the function is what? Excretion. So nephridia, that's the excretory organ in annelida. What is the function? What's the function? Nitrogenous waste. What does it do? It removes nitrogenous waste. Maintain ionic and fluid balance, obviously. Removes nitrogenous waste. Maintain ionic balance, fluid balance. What about Malpighian tubules? Where do you get it? Malpighian tubules? Can I say we get it in insects? Malpighian tubule? Structural organization, if you remember, you can tell the example. In insect, there was an example which we learned in structural organization. Cockroach, very good, Janvi. Cockroach, right? Then you have antenna gland or green gland, which you get in crustacean like prawn. है ना? So you get what? These are simple tubular forms. है ना? They all are invertebrate. They all are invertebrates. Right? So these are the simple tubular structures found in the invertebrates. Got it? Sorry. Now our next structure is what? Kidney, which is found in vertebrates. Kidney, which is found in vertebrates. So see, I have not given you any new data. I have given you what is there in NCERT. Do you know yesterday's paper, complete paper was NCERT paper? Has anyone come across the question paper? Yesterday NEET question paper? Yes or no? You all have to text me on co-host account, okay? Yeah, so 100% questions were from NCERT. So no need to worry, okay? Just try to learn whatever is there in NCERT, all right?
I'm sorry. So let us learn about human urinary system. So yeah, last class we had learnt about it, right? That we have a pair of kidney. We have a pair of kidney. Then what is this? These are the pair of ureter. One pair of kidney. One pair of ureter. One urinary bladder. Urethra. That will open into what? Urine. है ना? That will lead to release of the urine. Okay? So you have one pair of kidney. You can see in the diagram. ठीक है? You can see in the, if anyone wants need question paper, you can message me. I will send it to you. But message me tonight only, okay? Alright, because if you text me tomorrow, it might happen that I will miss your message. So you can message me tonight. Alright? So you can see now which one is little lower. The right one is little lower and left one is little up. So which one is little bigger? Right, you can see it is little bigger. And a little. You know the length and all. No? Let's revise the length. What's the length? Do you remember it? What is the length of kidney? 10 to 12 centimeter. Length, Aviral. What's the width? 5 to 7 centimeter. What's the thickness? 2 to 3 centimeter, right? What's the location? Is it retroperitoneal? Is it retroperitoneal? Yes or no? Retroperitoneal. पीछे की साइड है ना? एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कहाँ है? लास्ट थोरैसिक, थर्ड लंबर. लास्ट थोरैसिक आपका T12 है ना? लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं, राइट? तो लास्ट थोरैसिक टू थर्ड लंबर, ये आपका एग्जैक्ट लोकेशन पीछे की साइड डॉर्सल लाइनिंग में होगा, डॉर्सल कैविटी में होगा पीछे, राइट? किडनी के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड. 2 किडनी है तो 2 एड्रिनल ग्लैंड होते हैं. पेरिफेरल पार्ट ऑफ किडनी को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं. अंदर में कॉर्टेक्स के बाद जो पार्ट आपका बीच वाला है उसको क्या बोलते हैं? मेड्यूला बोलते हो. सब पता है आपको. पेरिफेरल वाला पार्ट कॉर्टेक्स है और मिडिल वाला पार्ट मेड्यूला है, राइट? अब रीनल आर्टरी का मतलब क्या होगा? रीनल आर्टरी कहां से ब्लड लेकर आ रही है? रीनल आर्टरी ब्लड कहां से लेकर आ रहा होगा? सोचो. हार्ट से लाएगा ना. तो रीनल आर्टरी आपका हार्ट से ब्लड लेकर आ रहा है, इसको दे रहा है. कहां से देगा? कहां से देगा बताओ? हाइलम से देगा कि नहीं? ये जो डिप्रेशन है उस डिप्रेशन को हाइलम बोलते हैं. तो रीनल आर्टरी भी हाइलम से जाएगा. ये देखो रीनल वेन है, ये वाला क्या है? रीनल वेन है. दिस इज रीनल वेन, राइट? हाँ, वेना कावा. सो ये क्या करेगा? ब्लड को कहाँ निकालेगा? किडनी से. ये भी हाइलम के थ्रू ही होगा और ये लेकर चला जाएगा किसके पास? हार्ट के पास. किसके पास लेकर चला जाएगा? हार्ट के पास. और भी क्या है जो हाइलम से कुछ और भी निकल रहा है ना? वन पेयर ऑफ यूरेटर. हाइलम से क्या निकल रहा है? वन पेयर ऑफ यूरेटर. ठीक है, चलो. यूरेटर कहाँ ओपन हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है. एक बात पूछती हूँ, बताना. अगर मैं इन तीनों रीजन को मिला दूं तो कौन सा शेप मिलता है बताओ तो? अगर मैं इन तीनों रीजन को मिला दूं, द ओपनिंग ऑफ यूरेटर इन द यूरिनरी ब्लैडर and the opening of urethra, it makes a delta na triangle. Very nice. So this region is called as trigone region. पूछेंगे वो आपसे कि यूरेटर कहाँ ओपन होता है ब्लैडर में? ट्राइगोन रीजन में होता है. ये क्या रीजन होता है? ट्राइगोन. What is this region? Trigone region. What is trigone? The openings of ureter and the urethra, they make a triangular region
एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्राइगोन। ठीक है, उसको हम ट्राइगोन रीजन बोलते हैं। ओके, ऑल राइट। कहाँ 4 होल? मैंने 3 बनाया है, ठीक है। दिस इज फॉर यूरेटर एंड दिस इज फॉर योर ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। ओके, अगर 4 दिख रहा है तो 3 है, मैं बता ये 3 है, ठीक है। ऑल राइट, सो आपका हो गया वो ट्राइगोन का रीजन। अब बताओ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम थोड़ा सा याद रखें तो बताओ इसमें किस तरह की टिश्यू पाई जाती है? इसमें किस तरह की टिश्यूज पाई जाती है? यूरिनरी सिस्टम में किस तरह की टिश्यूज पाई जाती है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ाया है। अच्छा, मैंने नहीं पढ़ाया, राइट? हाँ, किस तरह की टिश्यू पाई जाती है बताओ? यूरिनरी सिस्टम में जिस टिश्यू के पास स्ट्रेच होने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है, ना 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 साक्षी, जिसके पास, हाँ ठीक है, करेक्ट है, लेकिन स्पेशल नाम दिया है हमने उसको, स्पेशल नाम दिया है। देखो अभी लिखूंगी तो सबको समझ आ जाएगा। इसका नाम सुना है कभी? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का नाम सुना है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम का नाम सुना है? सुना है कि नहीं? तो आपको यूरिनरी सिस्टम में यूरेटर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, सब में कैसा एपिथेलियम मिलता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम का खासियत क्या है पता है? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रांजिशनल एपिथेलियम? दे डोंट हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन। They don't have basement membrane. Basement membrane illa nakko. They don't have basement membrane. So urinary system में आपको ट्रांजिशनल एपिथेलियम मिलता है, ठीक है। तो और कुछ स्ट्रक्चर है जो छूट रहा है, जो आपको समझ नहीं आ रहा क्या है मैम, तो पूछ लो मुझसे। ये तो बताया था, सुन लो, यहाँ पे सुन लो। ये तो कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया जिसमें ब्लड वेसल्स आपको बहुत ज्यादा मिलते हैं। हाँ सृष्टि, ये आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया जिसमें आपको ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये मेड्यूला वाला पार्ट हो गया। मेड्यूला पार्ट में आपको कोनिकल पिरामिड्स मिलते हैं, जिसको रीनल पिरामिड बोलते हैं, ये रीनल पिरामिड मर्ज होता है, जिसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं। ये माइनर कैलिक्स मर्ज होता है मेजर कैलिक्स में। वो मेजर कैलिक्स ओपन होता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस जब बाहर निकलेगा हाइलम से तो उसको यूरेटर बोलते हैं। समझ गए ना? इसको भी इसी डायग्राम में लिख देती हूँ ताकि आपका सब कुछ दिमाग में फिक्स रहे। क्या क्या है? कॉर्टेक्स है आपका। इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट में क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे ब्लड वेसल्स मिलेंगे, ठीक है। और आपको देखो क्या मिलेगा कॉर्टेक्स वाले पार्ट में, और किसी को पता है क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? पीसीटी मिलेगा, डीसीटी मिलेगा, और क्या मिलेगा? मैल्फिगियन बॉडी मिल सकता है ना, मैल्फिगियन बॉडी मिल सकता है। फिर अगर आप मेड्यूला की तरफ आओ तो मेड्यूला की तरफ आपको मिलेगा कोनिकल प्रोजेक्शंस, जिसको आप रीनल पिरामिड बोलोगे। ये रीनल पिरामिड मिल जाएंगे बहुत सारे, क्या बनाएंगे? माइनर कैलिक्स। ये माइनर, आप घबराओ मत, हाँ मैं इसको इतना बार रिपीट कराऊंगी कि आपको अच्छे से समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। मेजर कैलिक्स ओपन होता है रीनल पेल्विस में, और फिर ये फाइनली ओपन हो जाता है आपका यूरेटर में। ध्यान से सोचो मेरी बात को, ध्यान से सोचना मेरी बात को, कि हमें एक्चुअली मतलब है यूरिन बनाने से, है ना, कि हम यूरिन को किसी तरह यूरेटर पे पहुंचा दे, राइट। लेकिन मैंने यहाँ पे तो थोड़ा सा बात किया नेफ्रॉन का।
यहाँ मैंने थोड़ा सा नेफ्रॉन का बात किया, मैंने इसके बाद तो नेफ्रॉन का कोई चर्चा करा ही नहीं। डिड आई टेल यू एनीथिंग अबाउट नेफ्रॉन, कि उसका कौन सा पार्ट इधर है? नहीं बताया ना, नहीं बताया राइट। तो सुनो मेरी बात, पहले तो ये जानो, कॉर्टेक्स का जो भी पार्ट मेड्यूला की तरफ आता है ना, कॉर्टेक्स का कुछ कुछ पार्ट मेड्यूला की तरफ आता है, जो बीच बीच का जो गैप है ना, कॉर्टेक्स का कुछ कुछ पार्ट मेड्यूला की तरफ आता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में भी राइट। द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच गोज इन बिटवीन द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स विच गोज इन बिटवीन द रीनल पिरामिड, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टीनी। समझ आया ना? This part is called as what? The part of cortex which is found in between, or which goes in between the renal pyramids, that is called as column of Bertini. उस पार्ट को बोलते हैं हम कॉलम ऑफ बर्टीनी। पूरा स्ट्रक्चर मैंने अब बताया। अब देखो, कहीं ना कहीं तो नेफ्रॉन प्रेजेंट होगा ना बच्चा पार्टी। अगर ये किडनी है, चलो इसमें बताती हूँ, इसमें बताती हूँ, ये पूरा क्लियर डायग्राम है ना, इसमें बताती हूँ। कहीं ना कहीं तो नेफ्रॉन होगा ना। एक किडनी में, इन वन किडनी कितने नेफ्रॉन होते हैं आपको पता है? इन वन किडनी, एक किडनी में ऑलमोस्ट कितने नेफ्रॉन होते हैं? आपकी किडनी में कितने नेफ्रॉन है? 1 मिलियन। कितने नेफ्रॉन होते हैं? 1 मिलियन। एक किडनी में अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। यूनिट ऑफ किडनी है ना? तो सुनो, आखिर नेफ्रॉन कहां से स्टार्ट होता है? सोचो, अगर मैंने आपको ये बताया है कि कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पीसीटी, डीसीटी, मैल्पिगियन बॉडी है, तो सोच के बताना कि नेफ्रॉन का अरेंजमेंट किधर से है? कॉर्टेक्स से मेड्यूला से है या मेड्यूला से कॉर्टेक्स की तरफ है? सोच के बताओ। ये सब कॉन्सेप्ट है, हाँ, रटना नहीं है। ये सब कहां से स्टार्ट हो रहा है? कॉर्टेक्स से मेड्यूला की तरफ स्टार्ट हो रहा है। तो चलो, कॉर्टेक्स कौन सा ब्लैक लेती हूँ, दिखेगा क्या ब्लैक? देखो, इधर कॉर्टेक्स से आपका नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाता है, और फिर मैंने बोला पीसीटी वगैरह यहाँ मिलेगा। बाकी जितना पार्ट आपको मिलेगा, बाकी जितना पार्ट है आपका, वो कहाँ मिलेगा? मेड्यूला में मिलेगा। ध्यान से देखो, ये आपका हो जाएगा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट, बाउमेन्स कैप्सूल, पीसीटी। ये यहां तक आपका कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद टाटा बाय बाय। लूप ऑफ हेनली, ये आपका मेड्यूला की तरफ जाएगा। लूप ऑफ हेनली, फिर डीसीटी, फिर से कॉर्टेक्स की तरफ जब डीसीटी फिर से कॉर्टेक्स की तरफ आ जाएगा, ये वाला डीसीटी राइट। और फिर डीसीटी खुलता है आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में, और यही कलेक्टिंग डक्ट बहुत सारे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारे नेफ्रॉन का कलेक्टिंग डक्ट साथ साथ में ज्वाइन होने लगेगा, साथ साथ में ज्वाइन होने लगेगा, और खुलेगा कहाँ? कहाँ खुलेगा? माइनर कैलिक्स में। ध्यान से सुनो, इसको मैं फिर से रिपीट करूंगी। माइनर कैलिक्स में, फिर ये माइनर कैलिक्स आपके बड़े से एरिया में खुल जाएंगे। वो क्या बोलोगे उसको? मेजर कैलिक्स। क्या बोलोगे? मेजर कैलिक्स। व्हाट विल यू कॉल? मेजर कैलिक्स। ठीक है। फिर मेजर कैलिक्स कहाँ ओपन होगा? आपका कॉमन रीनल पेल्विस में खुल जाएगा। वेयर विल इट ओपन? रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस। ठीक है, कुछ समझ आया तो बताओ। अगर समझ में आया तो फिर से आ जाओ इधर। कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पीसीटी मिलेगा, डीसीटी मिलेगा, मैल्पिगियन बॉडी मिलेगा, राइट। तो मेड्यूला वाले पार्ट से बताओ मैं क्या क्या लिखूं? क्या लिखूं जल्दी बताओ। रीनल पिरामिड वगैरह उस एरिया में क्या मिलेगा आपको? रीनल पिरामिड वाले एरिया में
क्या मैं बोलूं लूप ऑफ हेनली मिलेगा? बिल्कुल सही। आपको ये पता नहीं होगा जो मैं बोलने वाली हूँ, बट इसलिए छोड़ देती हूँ, वो बाद में बताऊंगी। लूप ऑफ हेनली मिलेगा, कलेक्टिंग डक्ट मिलेगा, राइट। बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट आपके कहाँ खुलेंगे बच्चा पार्टी? माइनर कैलिक्स में खुलेंगे। बहुत सारे माइनर कैलिक्स के जो मिल जाएंगे वो क्या बनाएंगे बच्चा पार्टी? मेजर कैलिक्स, रीनल पेल्विस, एंड फाइनली आपका वो यूरेटर में यूरिन लेके आ जाएगा बाहर। समझे? ये पूरी चीज को एक साथ समझना है ताकि दिमाग में सब कुछ फिक्स रहे। ओके, गॉटचा? चलो, ये हो गया आपका ऐसा। चलो इसको देखो, एकदम रट जाना है, क्लास में ही सब कुछ रट जाना है। अब बताओ जल्दी जल्दी, बाहर के किडनी के बाहर के एरिया को कैप्सूल बोलते हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। रीनल कैप्सूल, आउटर कवरिंग ऑफ किडनी, उसको रीनल कैप्सूल बोलते हैं? नहीं बोलते हैं? जल्दी बताओगे? बोलते हैं ना, लास्ट क्लास में बताया था आपको कि उसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं, राइट। सो बाहर वाला दिखाया है इसमें? हाँ दिखाया तो है, रीनल कैप्सूल। दिस इज योर रीनल कैप्सूल, बाहर वाला लेयर। पूछोगे मैम किससे बना है, तो किससे बना होगा? अडाइपोस टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, इन सब से बना है। एरियोलर तो स्किन वाली लेयर हो जाती है आपकी। अडाइपोस टिश्यू क्यों है? क्योंकि अडाइपोस टिश्यू इनको जहां भी फैट होगा ना थोड़ा, वो शॉक से प्रिवेंट करता है। जो जितने मोटे रहते हैं उनको चोट उतना कम लगता है, लोग बोलते हैं ना, वैसे ही। तो ऊपर से थोड़ा सा अडाइपोस टिश्यू का भी लेयर है ना। एरियोलर टिश्यू है, अडाइपोस टिश्यू है, फाइब्रस टिश्यू है, ये सब चीज है ताकि उनको चोट ना लगे, टू प्रिवेंट द शॉक। अब उसके अंदर ये कॉर्टेक्स पार्ट है जिसमें ब्लड वेसल्स होगा। इसी एरिया में आपको मिलेगा ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी। फिर नीचे मेड्यूला वाले जो दिख रहा है ये वाला रीनल पिरामिड, इसमें आपको मिल जाएगा क्या? लूप ऑफ हेनली, राइट। ऊपर जाएगा, ऊपर जाके डीसीटी बनाएगा, और फिर डीसीटी भी कहाँ होगा? कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होगा। डीसीटी से फिर वो कलेक्टिंग डक्ट नीचे आएगा, और बहुत सारे कलेक्टिंग, 1 मिलियन है ना नेफ्रॉन, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन थोड़ी हमारे बॉडी से बाहर आएगा, एक ही यूरेटर बाहर आएगा ना। तो हमें सबको जोड़ना पड़ेगा ना, सबको जोड़िए। सबको जोड़ के कहाँ लाइए? माइनर कैलिक्स में लाइए। फिर माइनर कैलिक्स से कहाँ लाइए? मेजर कैलिक्स से लाइए। मेजर कैलिक्स से कहाँ लाइए? ये वाला पार्ट सॉरी क्या बोलते हैं इसको? रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस में लाइए। फिर कहाँ? यूरेटर में लाइए। समझ रहे हो ना? तो कॉर्टेक्स वाले एरिया में आपका मिलता है मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, मेड्यूला वाले पार्ट में क्या मिलता है आपको? मेड्यूलरी पिरामिड, द कोनिकल प्रोजेक्शंस। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में भी यही बोला था। ऑलवेज आई डू दिस मिस्टेक, है ना। मेड्यूला वाले रीजन में आपको मिलते हैं रीनल पिरामिड्स, राइट, कोनिकल प्रोजेक्शंस। गॉट इट? तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब समझ आता है? हमने उसको ऐसे कट कर दिया, तो आप ऐसे देख रहे हो कि इसमें क्या क्या है। पूरा किडनी है ना, पूरा किडनी, पूरा किडनी कैसे बताऊं? मान लो ये है, इसको मैं ऐसे कट कर रही हूँ, ऐसे कट करूंगी, कट ऐसे। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे कट कर रही हूँ, ट्रांसवर्स मतलब ऐसे होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब हमने किडनी को ऐसे कट किया। तो ऐसे कट करके हमें दिख रहा है कि अंदर में क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन इसमें राजमा की तरह। हाँ बिल्कुल सही सृष्टि, थैंक यू फॉर द एग्जाम्पल। राजमा जो है ना एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका। तो राजमा जैसे आप लॉन्गिट्यूडनल कट करोगे उसके बाद देखोगे ना उसको, वही है आपका किडनी, राजमा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये स्ट्रक्चर। तो जल्दी कोई समरी बता सकते हैं मुझे? अविराल आप इसको देख सकते हो, आप नेकेड आई से देख सकते हो। नेफ्रॉन कैन बी सीन थ्रू द नेकेड आई। 2 to 3 सेंटीमीटर का होता है नेफ्रॉन, आप नेकेड आई से देख सकते हो नेफ्रॉन्स को। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक नहीं है, यू कैन सी इट। तो जल्दी बताओ क्या क्या पढ़ा?
कॉर्टेक्स पार्ट में क्या क्या पढ़ा कि ब्लड वेसल्स होंगे, याद है सबको? फिर मैलपिगियन बॉडी होगी, फिर पीसीटी होगा नेफ्रॉन का, डीसीटी होगा नेफ्रॉन का। मेड्यूला में चले जाओ, कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो रीनल पिरामिड के बीच में आ जाए, क्या बोलोगे उसको? कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलोगे ना? एकदम दिमाग में फिक्स कर लो सब कुछ, कॉलम ऑफ बर्टीनी। फिर और क्या होगा? लूप ऑफ हेनली होगा। देन क्या होगा आपका? कलेक्टिंग डक्ट्स होंगे, एंड देन फॉलोड बाय माइनर कैलिक्स, फॉलोड बाय मेजर कैलिक्स, फॉलोड बाय रीनल पेल्विस, फॉलोड बाय यूरेटर। एकदम दिमाग में इसको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करो और फिक्स करो। गच्चा, आगे बढ़ रही हूं मैं, आगे बढ़ू? इतना तो मुझे लगता है कि अब सबको रटा गया है, राइट? पूरा रट्टू तोता बन चुकी हूँ। चलो अब नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो, अब देखो कितना इजी लगेगा। मैंने जो जो बोला है अब उसको देखेंगे, देखो ध्यान से सुनो। जो जो बोला था ना अभी, कहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, उसको देखो, ध्यान से देखना, फिर उसको एनालाइज करने की कोशिश करना। मेरे बोलने के पहले आपको एनालाइज करना चाहिए, है ना? मैं तो बताऊंगी, मैं आपको एनालाइज हो या नहीं, मेरा काम बताना है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुद से उसको डेवलप करें। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका है, ये आपका ग्लोमेरुलस है, ब्लड वेसल्स। तो मुझे ये बताओ, किडनी में ब्लड वेसल कहाँ से घुस रहा था? फ्रॉम वेयर इट वॉज एंटरिंग इनटू द किडनी? हाइलम से आ रहा था ना? यस और नो? हाइलम से आ रहा, सोचो, हाइलम से आया मतलब सबसे ऊपर इसको आना है, मतलब वो रीनल यूरेटर रीनल पेल्विस के रीजन से आ रहा है, और इसको पहुंचना कहाँ पे है? कॉर्टेक्स वाले रीजन पे पहुंचना है। क्या आप सोच पा रहे हो जो मैं सोचना आपको सोचवाना चाहती हूँ? वो अंदर से हाइलम में एंटर किया, और हाइलम से ऑल द वे इट हैज टू गो टू कॉर्टेक्स, समझे? क्योंकि कॉर्टेक्स में ही तो वहां बाउमिन्स कैप्सूल मिलेगा ना। तो देखो क्या आ रहा था बच्चा पार्टी? रीनल आर्टरी आ रहा था, रीनल आर्टरी आ रहा था ना। अब ये रीनल आर्टरी इतना डिवाइड करेगा, जब एमबीबीएस करोगे ना तो सबका नाम बताया जाएगा आपको। जब एमबीबीएस करोगे ना तो देखो, जैसे मान लो ये किडनी है, तो यहां से गया रीनल आर्टरी गया, मान लो यहां से क्या गया? रीनल आर्टरी गया। तो ये पूरा डिवाइड करेगा ना बच्चा पार्टी, जैसे पूरा 1 मिलियन नेफ्रॉन है ना, इसको बहुत डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड किया, यहां तक किसी तरह पहुंच गया, तो ये इतना पतला हो जाता है। डिवीजन ऑफ आर्टरी को क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ आर्टरी को क्या बोलते हैं बताओ? आर्टरी के छोटे छोटे डिवीजन वाले पार्ट को मैंने पढ़ाया है ना बॉडी फ्लूइड्स में। आर्टरी के हाँ साक्षी, थैंक यू, परफेक्ट, यस प्रियांशी, यस नुमान, आर्टेरियोल्स। तो देखो समझ आ रहा है यहाँ पे आर्टेरियोल क्यों दिख रहा है? वो इतने डिवाइड कर करके आते हैं कि फाइनली बस एक कैपिलरी बन जाता है, उसको हम आर्टेरियोल बोलेंगे। ग्रुप ऑफ, गुच्छा हो जाएगा वो, ठीक है? एकदम आर्टरी डिवाइड कर करके आर्टेरियोल बन जाएंगे। अब ध्यान से सुनोगे सब लोग, रीनल आर्टरी जो ब्लड को लेके आ रहा है, जिसको हमें फिल्टर करना है, हमें इसको फिल्टर करना है ना, हम रीनल आर्टरी से ब्लड को लेकर आ रहे हैं, हमें इसको फिल्टर करना है, और फिल्टर करने के लिए हमें नेफ्रॉन की जरूरत है, राइट? तो हम फिल्टर करने के लिए ले गए किसके पास? नेफ्रॉन के पास। तो जिससे हम लेकर गए उसका नाम है एफरेंट आर्टेरियोल। जिससे आप लेकर जाओगे उसको क्या बोलोगे? एफरेंट आर्टेरियोल। समझ आ रहा है ना? तो एफरेंट आर्टेरियोल बताओ कैसे याद रखेंगे इसको? इट ब्रिंग्स द ब्लड, ठीक है? एंट्री होगी इससे, इट ब्रिंग्स द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ब्रिंग्स द ब्लड फॉर फिल्टरेशन। हमें फिल्टर करना है ब्लड को, तो रीनल आर्टरी से आया,
डिवाइड होके एफरेंट आर्टेरियोल बना, तो एफरेंट आर्टेरियोल ये वाला हो गया, घूम फिर के आया। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल इतने छोटे छोटे हो जाते हैं ना, एकदम पूरा टफ्ट ऑफ आर्टेरियोल्स, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ग्रुप ऑफ कैपिलरीज, हाँ, बहुत सारे ग्रुप ऑफ कैपिलरीज आ जाएंगे। एंड इसको क्या बोलोगे? ग्लोमेरुलस। द टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, व्हाट विल यू कॉल इट? ग्लोमेरुलस। दिमाग में फिक्स हो जाना चाहिए जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है? एंड डोंट वरी, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि आपको रटवा दूंगी सब कुछ, समझा भी दूंगी, रटवा भी दूंगी, और एग्जाम में गलत भी नहीं करना है, ठीक है? ये है आपका टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। सबको एनसीईआरटी एकदम दिमाग में फिक्स कर लेना है, एक एक चीज। ये आपका हो गया ग्लोमेरुलस। चलो, अब ये ग्लोमेरुलस कहाँ जाएगा? बाहर। ये बाउमेन्स कैप्सूल है ना? तो बाउमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या पाया गया? ग्लोमेरुलस पाया गया। तो ये क्या करेगा यहाँ पे? ग्लोमेरुलस से जा ब्लड किसको दे देगा? नेफ्रॉन को दे देगा। ग्लोमेरुलस से ब्लड किसको दे देगा? नेफ्रॉन को दे देगा। जितना दे पाएगा वो दे देगा, बाकी ब्लड कहाँ आ जाएगा? बाहर चला जाएगा। अरे जितना दे पाएगा उतना ही देगा ना वो। तो कुछ ब्लड जितना भी लेकर आया फिल्टर करने के लिए, 5 लीटर है ना? स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है आपका? 1 मिनट में, एक बार में 70 ml होता है, राइट? तो कार्डियक आउटपुट कितना है आपका? कार्डियक आउटपुट अराउंड 5 लीटर है ना? तो पूरा 5 लीटर ब्लड को आपको फिल्टर करना है, राइट? किडनी पूरा, जैसे हार्ट, आपका दिल 1 मिनट में 5 लीटर पंप करता है ना ब्लड, वैसे ही आपका किडनी क्या करेगा? जो भी कार्डियक आउटपुट आएगा उसका 1/5 एक बार में, जो भी कार्डियक आउटपुट आता है उसका 1/5 ये फिल्टर कर देता है, समझे? तो 5 लीटर होता है ना, 5 लीटर, तो 5 लीटर में कितना फिल्टर कर देता है ये? 1/5 1000 होगा। 5 लीटर का 1/5 1 लीटर होगा ना, तो लगभग 1.1 लीटर 1100 से 1200 ml उतना फिल्टर हो जाता है एक बार में, 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट। बाकी कहाँ जाएगा? बाकी फिर से कहाँ पहुंच जाता है? बाकी फिर से ब्लड में ही है। ब्लड से कुछ आया और रिमेनिंग पार्ट अपना ब्लड में ही है, पूरा तो नहीं आया ना, पूरा तो नहीं आया, राइट? कुछ आया, कुछ उसी में रह गया, 1/5 अंदर आ गया, बाकी किस में रह गया? बाकी तो ब्लड में ही रह गया, राइट? ये वाला जो ब्लड निकला, यहां से जो ब्लड वेसल निकला, जो एग्जिट हुआ, उसको हम बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर एग्जिट। इज इट क्लियर? आपका जो बेचारा परेशान होके रीनल आर्टरी से आया, मेरे को फिल्टर करो फिल्टर करो फिल्टर करो, पहुंचा किसी तरह कॉर्टेक्स के पास, डिवाइड होते 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 मरते कटते तो एफरेंट आर्टेरियोल बना। चलो, नीचे से ब्लड को फिल्टर करने के लिए बाउमेन्स कैप्सूल को देंगे, बट बेचारा कितना दे पाएगा यार? 1/5 दे पाया, बाकी कहाँ चला गया? बाकी वापस आ गया इफरेंट आर्टेरियोल में। इतने में इनको खुशी नहीं हुई। इसका काम क्या है? बॉडी ने भेजा है कि तू इसको फिल्टर करके आ, मुझे नहीं पता तू कैसे करेगा, फिल्टर करके आ। तो क्या होगा? आपको पता है ना कि इस ब्लड में क्या है? फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, तो इसको थोड़ी पता है, नेफ्रॉन को थोड़ी ना पता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। क्या नेफ्रॉन वो जानता है कि हाँ यूरिया को लेना है और आरबीसी को नहीं लेना है? क्या नेफ्रॉन ये जानता है? क्या नेफ्रॉन जानता है इस चीज को? सोचो, उसको कोई बोल रहा है कि तू इसको ले तू इसको मत ले। इट इज फिल्ट्रेशन माय डियर। तो फिल्ट्रेशन किस पे बेस्ड होता है? अगर मैं आपको बोलूं 2 kg का गेहूं दिया मैंने आपको, मैंने बोला उसको चालने को, फिल्टर करने को, और मैंने एक जन को दिया बड़ा बड़ा छेद वाला फिल्ट्रेशन,
और एक जन को दिया है एकदम छोटे छोटे छेद वाला फिल्ट्रेशन। तो बताओ, जो बड़ा वाला फिल्ट्रेशन कर रहा है उसमें ज्यादा गेहूं फिल्टर हो जाएगा नीचे, या फिर कम गेहूं फिल्टर होगा नीचे? सोचो, जिसका मैंने बड़ा छेद दिया है फिल्ट्रेशन के लिए, ज्यादा जाएगा ना नीचे की तरफ। तो बोलो, क्या वो जानता है कि मैं पत्थर को नीचे ले जा रहा हूं कि मैं गेहूं को ले जा रहा हूं? क्या वो जानता है? जानने वाला चीज जो आपका है, सीव, सीव उसको बोलते हैं ना, सीविंग मशीन। तो क्या वो जानता है आपको कि मैं अच्छा गेहूं लेके जा रहा हूँ या मैं पत्थर लेके जा रहा हूँ? कुछ नहीं जानता ना वो क्या जानता है? वो सिर्फ साइज जानता है। वो क्या जानता है? वो सिर्फ साइज जानता है कि हाँ, मुझे इतने बड़ी वाली चीजों को ऊपर ही छोड़ देना है, इससे जो भी छोटा छोटा होगा उसको मुझे नीचे ले आना है। बस अगर ये समझ गए तो पूरा किडनी समझ गया। हमारा पूरा फिल्ट्रेशन साइज के अकॉर्डिंग होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बाउमन्स कैप्सूल में ब्लड वेसल से कैसी चीजें आ रही हैं? ब्लड वेसल से साइज के अकॉर्डिंग आ रही है। तो सोच लो, अगर साइज के अकॉर्डिंग आ रही है तो क्या इसे पता है कि भाई तू यूरिया है, तू आरबीसी है, तू प्रोटीन है, तू डब्ल्यूबीसी है? कुछ नहीं पता ना इसको। इसका मतलब कुछ समझ आ रहा है? कुछ समझ आ रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके नेफ्रॉन में, बाउमन्स कैप्सूल में कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आपको बहुत जरूरी हो बॉडी में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो ये ब्लड बाहर दिया, जो ब्लड रिमेनिंग इफरेंट आर्टेरियोल में है, इसमें अभी भी बहुत सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है। ऐसा हो सकता है या नहीं? सोच के बताना। ऐसा हो सकता है कि अभी भी बाउमन्स कैप्सूल में कुछ अच्छी चीजें चली गई हैं एंड इफरेंट आर्टेरियोल में कुछ बुरी चीजें चली गई हैं जो हमें फिल्टर करना था। हो सकता है कि नहीं? अरे बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा? इसे क्या पता कौन अच्छा है कौन बुरा है? कोई भेदभाव थोड़ी करता है ये, इसको बस साइज से मतलब था। ये समझ गए तो पूरा मैकेनिज्म समझ जाओगे कि आखिर किडनी फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो चलो, इतना बस ध्यान में रखना दिमाग में, जब मैं मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी ना कि यूरिन कैसे बनता है एंड ऑल दोस थिंग्स, तब ये बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो। तो एफरेंट आर्टेरियल समझ आ गया होगा, ग्लोमेरुलस इज टफ्ट ऑफ कैपिलरी समझ आया होगा, उधर से जब ब्लड वेसल बाहर निकलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल बोलोगे। तो ब्लड वेसल को यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हैं। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो पार्ट होता है। एक होता है बाउमन्स कैप्सूल का पार्ट, या फिर बोल सकते हो एक होता है, बोल सकते हो ना बाउमन्स कैप्सूल का पार्ट, और एक बोलते हो क्या, रीनल टिब्यूल का पार्ट। एक बोलते हो बाउमन्स कैप्सूल का पार्ट और दूसरा क्या बोलते हो, रीनल ट्यूब्यूल का पार्ट। तो रीनल ट्यूब्यूल पार्ट में कौन आएगा? आपका ये सब आ जाएगा, पीसीटी, ये आपका पीसीटी है ना, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है? जो पहले है ना? कौन पहले आया नेफ्रॉन के पास? यही वाला, फोल्डिंग पहले आया। कन्वॉल्यूटेड मतलब फोल्डिंग्स। सो प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, पीसीटी। कौन सा एपिथेलियम होता है? ये कल के पेपर में क्वेश्चन आया है। कल के नीट पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल में कौन सा एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग होता है? ये बता सकता है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का एनसीईआरटी का लाइन है ये। कैसे होते हैं? क्यूबॉइडल होते हैं। बहुत अच्छा अनुमान। क्या उसमें आपको ब्रश बॉर्डर मिलता है, माइक्रोविलाइज मिलते हैं छोटे छोटे? यस और नो? क्यूबॉइडल, बिल्कुल सही। तो उनमें, उनके सेल्स में आपको छोटे छोटे माइक्रोविलाइज मिलते हैं, राइट? यस। So that is the type of epithelial which you get, cuboidal epithelial tissue, and on cuboidal you get what? Microvilli, right? So that is PCT cells, lining of the cells. Okay? PCT से नीचे आओगे ना
तो एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है जिसको लूप ऑफ हेनली बोलते हैं। हेनली क्यों बोलते हैं? क्योंकि हेनली ने डिस्कवर किया था, इस लूप को हेनली ने डिस्कवर किया, लूप ऑफ हेनली। तो लूप ऑफ हेनली में क्या होता है, नीचे जब आओगे तो देखोगे एक मोटा पार्ट है और एक पतला पार्ट है, ध्यान से देखोगे तो पता चल जाएगा। जब नीचे आओगे ना तो एक थिक पार्ट मिलेगा और एक थिन पार्ट मिलेगा, दिख रहा है ना सबको बच्चा पार्टी? तो जब नीचे आते हैं, व्हेन यू कम डाउन, तो इसको क्या बोलते हैं हम? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इस पार्ट को क्या बोलोगे? थिक, थिक डिसेंडिंग लिप, थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। इसको क्या बोलोगे? थिन, थिन डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। ऊपर जाओ, अब असेंडिंग बोलोगे, है ना? ये क्या है? एक्चुअली यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, ये वाला थोड़ा थिन होगा, ये वाला पार्ट थोड़ा सा थिन होता है और ये वाला पार्ट थोड़ा सा थिक होता है, एक्चुअल ऐसा ही होता है, ठीक है? सो दिस इज योर असेंडिंग लूप ऑफ हेनली। उसके बाद फिर से एक कन्वॉल्यूटेड स्ट्रक्चर मिलता है एंड इसको हम बोलते हैं, वो बाद में आया ना, पीछे आया, जो बाद में आता है उसको डिस्टल बोलते हैं। इसको क्या बोलोगे? डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल ओपन होता है कलेक्टिंग डक्ट में। इफ यू रिमेम्बर नाउ, ये कलेक्टिंग डक्ट आपका मिल जाएगा किससे? माइनर कैलिक्स में जाएगा, मेजर कैलिक्स में जाएगा, रीनल पेल्विस में जाएगा और उधर से यूरेटर में ओपन हो जाएगा। तो चलो इसको फिर से देखो। क्या मैं बोल सकती हूँ कि इतना वाला पार्ट, इसके ऊपर का पार्ट कहाँ है बताओ? इसके ऊपर का पार्ट कहाँ है? इसके ऊपर का पार्ट कॉर्टेक्स में है कि मेड्यूला में है बताओ? ये वाला पार्ट बताओ, ये वाला पार्ट कहाँ है? ये वाला पार्ट कहाँ है? ये वाला पार्ट कॉर्टेक्स में है। बाकी ये सब पार्ट कहाँ है? मेड्यूला में है। बाकी ये सब पार्ट कहाँ है? मेड्यूला में है, ठीक है? तो इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अब चलो ब्लड वेसल का कहानी थोड़ा देख लेते हैं। कहां तक छोड़ा था हमने उसको? इफरेंट आर्टेरियोल तक छोड़ा था। अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि नेफ्रॉन में कुछ अच्छी चीजें भी चली गई हैं जो हमें बाहर फेंकना नहीं चाहिए हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू, एंड ब्लड वेसल में अभी भी कुछ क्या है? अभी भी वेस्ट मटेरियल्स है जो हमें वापस नेफ्रॉन को देना है, हमें वापस नेफ्रॉन को देना है। तो क्या होगा? अभी भी ये हार नहीं मानेगा। देखो इफरेंट आर्टेरियोल क्या करेगा? नेफ्रॉन के चारों तरफ गोल 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 चक्कर काटेगा, कभी तो मौका मिल जाएगा, कभी तो मौका मिल जाएगा। एंड देन दिस इफरेंट आर्टेरियोल जब नीचे आएगा पीसीटी और डीसीटी के अराउंड, ये पीसीटी है ना आपका और ये डीसीटी, जब इफरेंट आर्टेरियोल पीसीटी के अराउंड आएगा, डीसीटी के अराउंड आएगा, इसको हम बोलते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? यहाँ पे नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है। When it surrounds the PCT, उसके ऐसे चारों तरफ गोल गोल घूम जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे इसको? PTC, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, गॉट इट? अब ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जब लूप ऑफ हेनली की तरफ नीचे आते हैं, when these peritubular capillaries come down towards the loop of Henle, ध्यान से देखोगे तो ये ऐसे आते, इधर से आते हैं, इधर से, समझ रहे हो कुछ? ये ऐसे घूम गया, इधर से आ रहा है। तो बताओ अगर ये इधर से ऐसे आ रहा है तो ये वाला क्या है बताओ? इस साइड वाला पार्ट क्या है? ये डिसेंडिंग है कि नहीं? सोच के बोलना। ये वाला पार्ट
डिसेंडिंग है या नहीं? दिख नहीं रहा क्या? दिस पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज डिसेंडिंग और नॉट? वासा रेक्टा हमारा इधर से आ रहा है, वासा रेक्टा हमारा इस साइड से आ रहा है, तो अगर इस साइड से आ रहा है तो ये वाला डिसेंडिंग होगा कि नहीं? सोचो, यस और नो? दिख रहा है आपको? ये आपका पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जब लूप ऑफ हेनली की तरफ आया तो इधर से आया, तो ये डिसेंडिंग होगा कि नहीं? इट विल बी डिसेंडिंग और नॉट? यस और नो? नहीं समझ रहे क्या? यस राइट, हाँ। फिर क्या होगा, ध्यान से देखोगे, इसका जो डिसेंडिंग वाला वासा रेक्टा है इसको वासा रेक्टा बोलते हैं, ठीक है, जो लूप ऑफ हेनली की तरफ आया। तो इसका जो डिसेंडिंग वाला वासा रेक्टा है, क्या क्या वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के साथ है? देखो तो, ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनली था ना, क्या ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो नीचे की तरफ आ रहा है वो किसके साथ है? वो असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के साथ है या नहीं? दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनली माय डियर, एंड दिस इज व्हाट? आई एम ड्रॉइंग इट लिटिल फार ताकि आपको समझ आए। ये वाला डिसेंडिंग वासा रेक्टा है ना, वो उधर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट, एंड ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कुछ दिख रहा है कि डिसेंडिंग वासा रेक्टा किसके साथ है? असेंडिंग लूप ऑफ हेनली के साथ है। ये वासा रेक्टा ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये वाला आपका असेंडिंग वासा रेक्टा हो जाएगा। तो जो ऊपर की तरफ जा रहा है वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनली में, क्या वो देखो डिसेंडिंग के साथ है? डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के साथ, ध्यान से देखो, ये डिसेंडिंग था ना आपका, तो डिसेंडिंग के साथ कौन सा वासा रेक्टा है? असेंडिंग है। यस और नो? तो इनका क्लोज प्रॉक्सिमिटी दिख रहा है आपको कि वासा रेक्टा, पहले तो ये याद रखो, एफरेंट आर्टेरियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्टेरियोल, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, वासा रेक्टा अराउंड द लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग जो होगा वो असेंडिंग के ऑपोजिट में होगा, साथ साथ होगा, और जो असेंडिंग होगा वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली के क्लोज होगा। क्या ये समझ में आया है? Is this understood? If this is understood, please let me know. Is this understood? हाँ नहीं, कुछ तो बोल दो। आया है, बहुत अच्छी बात है। चलो, इसके अकॉर्डिंग जो आपको दिख रहा है ना, हमारे पास एक्चुअली दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। हमारे पास कितने तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं? दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कौन कौन से नेफ्रॉन होते हैं वो? आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, वो तो सब पता चल जाएगा कल, है ना। नेक्स्ट क्लास में सब रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास मैं पूरा मैकेनिज्म समझाने वाली हूँ, अभी पूरा स्ट्रक्चर बता रही हूँ ना। हमारे पास दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेड्यूलरी। कॉर्टिकल एंड जक्स्टामेड्यूलरी दो तरह के होते हैं। हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द नेफ्रॉन कौन से हैं? कॉर्टिकल है। ऑब्वियसली कॉर्टिकल का मतलब क्या होगा? कॉर्टेक्स वाले रीजन में होगा या मेडुला वाले रीजन में होगा? दिमाग लगाओ और आंसर पाओ, दिमाग लगाओ और आंसर पाओ। कॉर्टिकल वाला किधर होगा? बिल्कुल सही अविराल, ऑब्वियसली ये कहाँ होगा? कॉर्टेक्स में पाया जाएगा। तो बोलो, अगर कॉर्टेक्स में पाया जाएगा तो छोटा होगा या बड़ा होगा? साइज इसका छोटा होगा या बड़ा होगा? साइज स्मॉलर होगा। लूप ऑफ हेनली, इसका लूप ऑफ हेनली या तो एब्सेंट बोलोगे या बहुत छोटा होगा, वेरी शॉर्ट। लूप ऑफ हेनली छोटा होगा ना, ये कॉर्टेक्स वाले एरिया में ही रहेगा। अगर लूप ऑफ हेनली छोटा है तो वासा रेक्टा का क्या होगा बताओ? वो भी छोटा रहेगा ना, वासा रेक्टा भी छोटा रहेगा, क्योंकि सबको कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहना है। सबको कहाँ सीमित रहना है?
कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहना है। जक्स्टा मेडुलरी कितने होंगे? 15% होंगे। साइज इसका बड़ा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉर्टेक्स से लेके मेडुला तक रहेगा नॉर्मल। इसका लॉन्ग होगा लूप ऑफ हेनली, इसका वासा रेक्टा भी लॉन्ग होगा। सब तो कॉमन सेंस है, राइट? कुछ रटना पटना नहीं है। वासा रेक्टा होगा। एक बात बताऊं, हमारे बॉडी में 15% जक्स्टा मेडुलरी है एंड 85% कॉर्टिकल है। तो बताओ मोस्ट ऑफ द टाइम फंक्शनल कौन होगा? मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सा फंक्शनल होगा? दिमाग से बोलना, बुक से मत बोलना। कॉर्टिकल वाला, बिल्कुल सही, क्योंकि ये हमारे पास बहुत ज्यादा है। हाँ, ये ज्यादा है ना, तो जो ज्यादा है उसी को खत्म करोगे ना पहले। तो हमारी बॉडी में फंक्शनल हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम कॉर्टिकल फंक्शनल होता है। जब भी आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाती है, जब ना ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने की जरूरत है, लूप ऑफ हेनली लंबा चाहिए ना, लूप ऑफ हेनली रहेगा तभी आप ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, जब पानी को कम लॉस करना है, सबको एब्जॉर्ब कर लेना है आपको बॉडी से, ब्लड से, तब आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन काम आएगा। जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगा ना, शॉर्टेज ऑफ वाटर, then it is active. When it is active during shortage of water. तो सोचो, वैसे ऑर्गेनिज्म जो पानी एकदम कम से कम रिलीज करते हैं यूरिन में, मतलब उनका लूप ऑफ हेनली लंबा है। ठीक है ना? बुझ लो पारी। हाँ प्रियंका, थैंक यू। ओके, समझ गए ना सब लोग? कुछ नहीं रटना है। ओके सो लेकिन एक एक लाइन याद रखना है, कुछ रटना नहीं है, बट ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी आपको समझ के पूरा याद रखना है। ऑल राइट, सो दैट इज कॉर्टिकल एंड जक्स्टा मेडुलरी टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन के टाइप्स, ब्लड वेसल का क्या प्रोसेस है ना, कहाँ से जैसे आता है कैसे जाता है, फिर कॉर्टेक्स मेडुला में क्या क्या मिलता है, ये सारी चीजें हमने सीखी। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम वगैरह पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या? प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। देख लो, मैल्फिगियन बॉडी क्या होता है पता है आपको? ये ग्लोमेरुलस हो गया ना, एफेरेंट आर्टेरियोल, इफेरेंट आर्टेरियोल, ये ग्लोमेरुलस हो गया। ग्लोमेरुलस along with the Bowman's capsule, जो कप जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपका ग्लोमेरुलस अंदर है। ग्लोमेरुलस along with the Bowman's capsule, आप उस स्ट्रक्चर को मैल्फिगियन बॉडी बोलते हो या रीनल कॉर्पस्कल बोलते हो। ध्यान रखोगे इस बात का। मैल्फिगियन बॉडी हमने अभी अभी पढ़ा था, कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है। याद है कुछ? कॉकरोच का मैल्फिगियन ट्यूब्यूल्स था उसका एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। यहां हमारे बॉडी में मैल्फिगियन बॉडी है। हमारा बॉडी, हमेशा याद रखना, बॉडी, मेरा बॉडी, मैल्फिगियन बॉडी। गॉचा? समझे सब लोग? सो एक और कॉन्सेप्ट समझोगे? कॉन्सेप्ट, हाँ, ये काम आएगा अगली क्लास में आपको। यहाँ पे किसका डायमीटर बड़ा लग रहा है? एफरेंट आर्टेरियोल का या इफरेंट आर्टेरियोल का? किसका? कौन फैला हुआ है ज्यादा? एकदम मस्त। कौन फैला हुआ है? एफरेंट फैल गया ना खुशी से। एफरेंट फैला हुआ है, राइट? यस, एफरेंट इज फैला हुआ एंड इफरेंट इज सिकुड़ा हुआ। तो जो पतले हो सब इफरेंट हो और जो मोटे हो सब एफरेंट हो। तो जो मोटे रहते हैं वो हमेशा
इफरेंट को दबा देते हैं, राइट? होगा ना ऐसा? किसका प्रेशर ज्यादा होगा बताओ? एफरेंट का प्रेशर इफरेंट पे ज्यादा होगा या इफरेंट का प्रेशर एफरेंट पे ज्यादा होगा? एफरेंट का प्रेशर इफरेंट पे ज्यादा होगा ना, एट एनी केस, राइट? तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, ये समझेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? लेकिन एक बात बताओ, अगर दुनिया में कोई पतले लोग नहीं होते, अगर दुनिया में कोई पतले लोग होते ही नहीं, तो क्या कभी मोटे लोग अपना इफेक्ट दिखा पाते? सोचो, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बहुत गौर फरमाइएगा मेरी बात पे। अगर दुनिया में कोई पतले लोग होते ही नहीं, तो क्या मोटे लोग कभी भी कोई दबाव बना पाते पतले लोगों पे? नहीं ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पतले लोग, जिसकी वजह से मोटे लोग उनका फायदा उठा रहे, है ना? मतलब अगर एफरेंट आर्टेरियोल इस पे प्रेशर बना पा रहा है, अगर एफरेंट आर्टेरियोल मोटा वाला आदमी इस पे प्रेशर बना पा रहा है, मतलब इफरेंट आर्टेरियोल उसको करने दे रहा है, इफरेंट आर्टेरियोल एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं पतला हूं, तू प्रेशर बना ले। इफरेंट आर्टेरियोल उसको एक्सेप्ट किया ना? यस और नो? अरे हाँ बोल दो, हाँ या ना? हाँ। तो इसी के साथ हमारी स्टोरी आज खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में जो जो पढ़ाया है ना, दिमाग में फिक्स करके, अटैच करके, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके सब रखने का। अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ओके, यस, ये पूरा स्ट्रक्चर वाला पार्ट था कि कौन कैसे किधर जाता है एंड क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास इज रिलेटेड टू यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, है ना? हाँ विडाल, चलो चलो ठीक है, कूल है देन। मिलते हैं अगली क्लास में। आज की कथा को यहाँ समाप्त करते हैं।